ایران کے اسرائیل پر تابڑتوڑ حملے جاری۔ ایرانی میزائلوں نے اسرائیل میں تباہی مچا دی ہے۔ عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں۔ متعدد علاقوں میں بجلی کا نظام بھی معطل۔ اسرائیلی خوف کے مارے زیر زمین شیلٹرز میں جا چھپے۔ خبر ایجنسی کے مطابق ایرانی حملوں میں 24 اسرائیلی ہلاک جبکہ 450 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ 50 سے زائد ملبے تلے دبے ہوئے ہیں یا لاپتہ ہے۔ ایران کے اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب اور حیفا میں ایرانی میزائل حملے سے متعدد عمارتیں زمین بوس ہو چکی۔ وسطی اسرائیل میں ایران کے تازہ حملے میں 8 اسرائیلی ہلاک جبکہ 90 سے زائد زخمی اور متعدد کی حالت تشویشناک ہے۔ ایران کا اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ پر بھی میزائل حملے کا دعویٰ۔ نتنیاہو کے آبائی گھر پر بھی ایرانی میزائل کا دعویٰ۔ ایرانی حملوں سے تل ابیب، یروشلم، حیفا، ایلات اور بیت یا میں بھی بڑے پیمانے پر تباہی۔ اسرائیلی صحافیوں کا کہنا ہے کہ ایسی خوفناک تباہی نہیں دیکھی۔ دھماکے انتہائی خوفناک ہیں۔ اسرائیلی حکومت نے ملک بھر میں ہنگامی صورتحال میں 30 جون تک توسیع کر دی ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نتنیاہو کا تل ابیب میں تباہ حال علاقوں کا دورہ۔ سربراہ ایرانی فوج امیر حاتمی نے اسرائیلیوں کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی آبادکار مقبوضہ علاقے خالی کر دیں۔ دشمن کے خلاف ہر اقدام قومی سلامتی کے لیے اٹھایا جا رہا ہے۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور حملہ۔ اسرائیلی شہر حیفا میں دھماکوں کی آوازیں، کئی میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا۔ خبر ایجنسی کے مطابق تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور حملہ۔ اہم خبر یہ ہے کہ ایران کا اسرائیل پر ایک اور حملہ۔ اسرائیلی شہر حیفا میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ کئی میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ خبر ایجنسی کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی شہر حیفا میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ بڑی خبر اور تازہ ترین صورتحال یہ ہے کہ ایران کا اسرائیل پر ایک اور حملہ۔ اسرائیلی شہر حیفا میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ کئی میزائلوں نے کامیابی سے ہدف کو نشانہ بنایا۔ خبر ایجنسی کے مطابق تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ ایران کا اسرائیل پر ایک اور حملہ۔ اسرائیلی شہر حیفا میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں اور کئی میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے کہ ایران کا اسرائیل پر ایک اور حملہ۔ اسرائیلی شہر حیفا میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ کئی میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ اس سے پہلے اسرائیل کی جانب سے ایران پر دھماکہ کیا گیا، میزائل داغے گئے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ ایران کا جوابی وار اسرائیل پر اور حملہ کر دیا۔ اسرائیلی شہر حیفا میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں۔ تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے اور خبر ایجنسی کے مطابق کئی میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ فوٹیجز آپ کی ٹیلی ویژن اسکرین پر ہے کہ ایران کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے وہ اسرائیل پر کیا گیا ہے اور اسرائیلی شہر حیفا میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں اور دوسری طرف خبر ایجنسی کے مطابق کئی میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا اور تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ ایمرجنسی کی صورتحال ہے۔ ایران کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا اور لمحہ بہ لمحہ ایران اور اسرائیل دونوں کی جانب سے حملے کیے جا رہے ہیں، مگر اب ایران کا اسرائیل پر حملہ کیا گیا۔ تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ کئی میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا ہے اور خبر ایجنسی کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ اسرائیلی شہر حیفا میں دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں اور کامیابی کے ساتھ اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل پر ایک اور حملہ کیا گیا، بڑا حملہ ہوا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے حملہ کیا تھا، جوابی وار کیا گیا ایران کی جانب سے اور اسرائیل پر حملہ ہوا ہے۔ اسرائیلی شہر حیفا میں یہ دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئیں، بڑے دھماکے کیے گئے اور بتایا گیا ہے کہ کئی میزائلوں نے کامیابی سے اسرائیل پر جو ہے وہ اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ ایمرجنسی کی صورتحال ہے اور الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیلی شہر حیفا میں یہ دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں، وہاں پہ دھماکے کیے گئے ہیں۔ کئی میزائلوں نے کامیابی سے اہداف کو نشانہ بنایا اور ایران کا اسرائیل پر میزائل داغنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ تل ابیب میں بھی سائرن بج اٹھے۔ ایمرجنسی کی صورتحال ہے، بگدڑ مچ گئی، بڑے دھماکے کیے گئے ہیں ایران کی جانب سے۔ فوٹیجز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایران کی جانب سے جو میزائل داغے گئے اسرائیل کی جانب، وہ کامیابی سے اہداف کو نشانہ
बने हैं और तल अबीब में भी सायरन बज उठे और वहाँ पर एमरजेंसी की सूरत हाल है। इसराइली शहर हैफा में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं और आपको अपडेट करें ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि ईरान का इसराइल पर एक और हमला किया गया और इसराइली शहर हैफा में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं और कई मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना भी बनाया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक ये तस्दीक की गई है। ये मिसाइल आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है जो ईरान की जानिब से इसराइल में फेंके गए हैं और इससे पहले इसराइल ने ईरान पर ये धमाके किए, मिसाइल दागे गए, मगर अब जो ईरान ने मिसाइल दागे हैं वो कामयाबी से वहाँ निशाना लगा है। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली शहर हैफा में ये धमाके किए गए हैं और वहाँ धमाकों की आवाज़ें भी सुनी गई हैं। ये मिसाइल जो कि ईरान की जानिब से फेंके गए आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। आपको अपडेट किया जा रहा है कि ईरान का इसराइल पर ये हमला किया गया है, धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं और इसराइली शहर हैफा में धमाके किए गए हैं और धमाकों की आवाज़ें दूर दूर तक सुनी गई हैं। कई मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना भी बनाया है। जो हमले किए गए, जो ईरान की जानिब से धमाके किए गए वो कामयाबी से किए गए हैं, अहदाफ को निशाना बनाया गया है। खबर एजेंसी के मुताबिक तल अबीब में भी सायरन बज उठे हैं, हर तरफ एमरजेंसी की सूरत हाल है और जंग जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कभी इसराइल की जानिब से और कभी ईरान की जानिब से धमाके किए जा रहे हैं, मिसाइल दागे जा रहे हैं, मगर अब ईरान का इसराइल पर हमला हुआ, ये बड़ा हमला आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मिसाइल किस तरह से ईरान की जानिब से ये दागे गए और धमाकों की आवाज़ें दूर दराज तक सुनी गई। कई मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना भी बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइली शहर हैफा में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई, बड़े धमाके किए गए जो कि कामयाबी से अपने अहदाफ को पहुँचे हैं और निशाना भी बनाया गया। तल अबीब में भी सायरन बज उठे। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। आपको बताएं कि ईरान ने एलात पर भी मिसाइल बरसाए हैं। ईरान की जानिब से ये बड़ी कार्रवाई थी, बड़े धमाके किए गए हैं। इसराइली शहर हैफा में धमाके किए गए और वहाँ दूर दराज तक ये आवाज़ें धमाकों की सुनाई दी गई हैं और आसमान पर ये मिसाइलों की रफ्तार आप देख सकते हैं। ईरान की जानिब से ही मिसाइल दागे गए और इसराइली शहर हैफा में ये धमाके किए गए हैं। ईरान की जानिब से तल अबीब में भी सायरन बज उठे, एमरजेंसी की सूरत हाल है, अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और अपडेटेड सूरत हाल ये है कि अभी ईरान की जानिब से ये जो मिसाइल दागे गए उन्होंने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया है और ये बताया गया है कि इसराइली शहर हैफा में ये धमाके किए गए हैं और दूर दराज तक इन धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं और तल अबीब में भी सायरन बज उठे हैं और खबर एजेंसी के मुताबिक ये पता चला है कि अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। खौफ व हरास का आलम है। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं और ईरान ने एलात पर भी मिसाइल बरसाए हैं जो कि कामयाबी से अहदाफ को निशाना बना चुके हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ये पता चला है कि ईरान का इसराइल पर एक और हमला हुआ और उस हमले में कामयाबी से जो धमाके थे उन्होंने अहदाफ को निशाना बनाया है। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से जो है वो हमला किया वो और बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए हैं। ईरान ने एलात पर भी मिसाइल बरसाए हैं। आपको अपडेट किया जा रहा है ताज़ा तरीन सूरत हाल के हवाले से कि ईरान की जानिब से एक और हमला किया गया, ये जवाबी हमला था और इसराइली शहर हैफा में धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं, बड़े धमाके किए गए और आसमान पर ये मिसाइल आप देख सकते हैं कि किस तरह से ईरान ने इसराइल पर हमला किया और ये जवाबी हमला था। इससे पहले इसराइल ने ईरान पर हमला किया और कई मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया है। इसराइल के जंगी जुनून, ईरान पर फ़ज़ाई हमलों में शिद्दत आ गई, सरकारी इमारतें निशाना बनाई गई। ईरानी वज़ारत दाखिला और तेहरान के अहम अज़ला में इसराइली मिसाइल हमले हुए। 2 बड़े इसराइली प्रोजेक्टाइल ने तेहरान के वसी इलाकों को निशाना बनाया है। फातमी स्क्वायर, जन्नताबाद और विलियासर शोक में धमाकों की इतलात मौसूल हुई हैं। इसराइल का ईरान में आर्मिया बेस पर भी ताज़ा फ़ज़ाई हमला हुआ। पासदारान इनकलाब इस्लामी के 4 अरकान शहीद हुए। इसराइली हमलों में शहादतों की तादाद 219 हो गई, 650 ज़ख्मी हुए और 9 एटमी साइंसदान और 20 फौजी कमांडर्स भी शामिल हैं। इसराइली हमलों में एरोस्पेस के मुतादद सीनियर एहलकार शहीद हो चुके हैं। इसराइली एयरफोर्स का ईरान के शहर तेहरान पर फ़ज़ाई हमला, मेन वाटर पाइप लाइन को शदीद नुकसान पहुंचा। शिराज शहर में भी फौजी तनसीबात पर इसराइली फ़ज़ाई हमले हुए। तेहरान, बंदर अब्बास, करबान और तब्रेज़ समेत कई शहरों पर
क्रूज मिसाइल दाग दिए गए। तेल के ज़खायर और गैस फील्ड निशाना बनाई गई। तेल के 2 डिपो मुतासर हुए। तेहरान ऑयल रिफाइनरी में हमले के बाद आग लग गई और बूशहर में जनूबी पारस गैस फील्ड में भी हमलों में आतिशज़दगी। इसराइल ने तेहरान में वजारत दिफा के हेडक्वार्टर समेत 40 अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल का ईरानी शहरियों को हंगामी इनखला का हुक्म, फौजी तंसीबात से फौरी दूर हो जाएं। इसराइली फौज की वार्निंग, ईरान के पास खतरनाक हथियार हैं जो इसराइल को शदीद नुकसान पहुंचा सकते हैं। ईरान पर हमले जारी रहेंगे, खामनाई हमारा निशाना है। इसराइली हुकाम की जानिब से यह कहा गया। ईरान का 1 घंटे में इसराइल के 10 त्यारे मार गिराने का दावा। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे, ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को आगाह कर दिया है। ईरानी अहदेदार ने बताया है कि तेहरान हमले के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। इसराइली हमलों का जवाब देने के बाद मुज़ाकरात हो सकेंगे। ओमान और कतर से कहा है कि वो जंग बंदी के लिए अमेरिका से बात करें। ईरानी अहदेदार की खबर एजेंसी से गुफ्तगू हुई है। हालत जंग में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरान ने सालिस, कतर और ओमान को आगाह कर दिया है। ईरानी अहदेदार ने बताया है कि तेहरान हमले के दौरान मुज़ाकरात नहीं करेगा। इसराइल के ईरान के शहर मशहद में 2 मकामात पर हमले हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशहद एयरपोर्ट पर ईंधन भरने वाले तैयारे को निशाना बनाया गया है। इसराइली फ़ज़ाई हमले में मशहद एयरपोर्ट और रनवे को नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि मशहद शहर पर हमला 2300 किलोमीटर की दूरी से किया गया, जबकि इसराइली ड्रोन्स ने तेहरान में तलबा के हॉस्टल्स पर भी हमला कर दिया है। इसराइल के ईरान के शहर मशहद में 2 मकामात पर हमले हुए। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशहद एयरपोर्ट पर ईंधन भरने वाले तैयारे को निशाना बनाया गया है। इसराइली फ़ज़ाई हमले में मशहद एयरपोर्ट और रनवे को भी नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइल जानता है कि ईरान पर हमलों के बाद उसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसराइली आर्मी चीफ का वीडियो बयान। इसराइल और ईरान में कशीदगी बढ़ने से सूरत हाल संगीन हो सकती है। इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात और बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरे पर हमले किए। इसराइल आर्मी चीफ का दावा, इसराइल और ईरान के दरमियान ताज़ा कार्रवाइयों में हलाकतों से जंग वसी हो सकती है। इसराइल जानता है कि ईरान पर हमलों के बाद इसकी कीमत अदा करनी पड़ेगी। इसराइली आर्मी चीफ का वीडियो बयान। इसराइल और ईरान में कशीदगी बढ़ने से सूरत हाल संगीन हो सकती है। इसराइल ने ईरान की जौहरी तंसीबात और बैलिस्टिक मिसाइल ज़ख़ीरे पर हमले किए। इसराइली आर्मी चीफ का ये दावा है, इसराइल और ईरान के दरमियान ताज़ा कार्रवाइयों में हलाकतों से जंग वसी हो सकती है। और आपको दें कि ईरान का इसराइल पर एक और हमला। इसराइली शहर हैफा में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई हैं। कई मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। खबर एजेंसी के मुताबिक तल अवीव में भी सायरन बज उठे। ईरान ने इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इलात पर भी मिसाइल बरसाए हैं। इसराइली हुकूमत की शहरियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत कर दी गई है। ईरान के मिसाइल हमलों में हैफा पावर प्लांट में आग लग गई है। इसराइल का ईरान के फर्द जौहरी तंसीब पर फ़ज़ाई हमला हुआ है, जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक फर्दो जौहरी तंसीब के करीब 2.5 शिद्दत ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए। ईरान का इसराइल पर एक और हमला। इसराइली शहर हैफा में धमाकों की आवाज़ें, कई मिसाइलों ने कामयाबी से अहदाफ को निशाना बनाया। तल अवीव में भी सायरन बज उठे। ईरान ने इसराइल बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं, जबकि खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने इलात में भी मिसाइल बरसाए हैं। इसराइली हुकूमत की शहरियों को महफूज मकामात पर जाने की हिदायत की गई है। हैफा पावर प्लांट में आग लग गई, बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। इसराइल का ईरान के फर्दो जौहरी तंसीब पर फ़ज़ाई हमला हुआ। फर्दो जौहरी तंसीब के करीब 2.5 शिद्दत ज़लज़ले के झटके भी महसूस किए गए हैं। बड़ी खबर यह है कि ईरान का इसराइल पर एक और हमला।